Good morning everyone and welcome to the class. We are doing the chapter International Organizations, and under this chapter we are discussing about the reforms in the United Nations, and in this context we have seen that whenever we talk about change in the United Nations, actually we talk about the reforms in the Security Council, and whenever we talk of reforms in the United Nations, we talk of two types of reforms. There is a need, or we can say demand, of two types of reforms. The first is in the reform of the reform in the structure and process of the organization, and under this structure and process there is a demanded change in the membership of the Security Council to increase the permanent as well as non-permanent members in the Security Council. And we have discussed about it, why there is need to change in the membership of the Security Council, why this demand is there, and we have also discussed some of the criteria which are there in order to bring in new permanent as well as non-permanent members in the Security Council, and we have also discussed the limitations of this criteria. ये जो criteria fix किया जा रहा है कि नए मेंबर्स के आने के लिए क्या होना चाहिए, क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, उसमें क्या प्रॉब्लम्स हैं, वी हैव ऑल्सो डिस्कस दैट. एंड देन वी वर ऑल्सो डिस्कसिंग अबाउट द रिफॉर्म in the nature of membership, because many times it is also demanded that the Security Council does not work on the principle of democracy and equality, because veto power is given to 5 permanent members, and this is against the concept of equality. And that is why what is the demand, that the nature of membership should be changed completely. That is, veto should be abolished. And in this regard we have discussed why veto was given. Actually, what is the utility of the veto? Because veto is just like a privileged position which was given to the powerful 5 countries which emerged powerful after the Second World War, and this veto was given in order to bring stability in the world politics. If these powerful countries will be given privileged position, then they will take interest in the activities of the UN, and thus the UN will become successful, because they will get UN will get the support of the powerful countries, and that is the reason this was given. So the question, the demand that veto power should be abolished altogether is not a proper demand, and first of all it can never be met. This demand will never be met, because the permanent members will never favor this kind of resolution which is aimed at abolishment of veto power, first of all. Then second thing is that if suppose by any way veto is abolished, then in that situation these powerful countries will lose interest in the activities of the UN, and they will start taking decisions outside the organization, and this will weaken the organization. So we have discussed up to this, and we were discussing now that there is a demand for change in the jurisdiction of the UN, है ना. UN के jurisdiction में भी चेंज की बात होती है, और इसके लिए जब UN ने 60 years कंप्लीट किया इन द ईयर 2005, तो इनकी एक जो मेंबर कंट्रीज थे उनकी बैठक हुई, उनकी मीटिंग हुई सितंबर 2005 में. द मीटिंग वाज टू सेलिब्रेट द एनिवर्सरी, द 60th एनिवर्सरी, एंड रिव्यू द सिचुएशन. And in this meeting, the leaders decided that some steps should be taken
to make UN more relevant in the changing context. Whatever changes are happening in the world politics, the UN must change itself according to changed circumstances. Then only it can remain relevant and meaningful. Okay, so what are the steps that is recommended to be taken by this meeting of head of the states of all the member countries of UN? The first step is creation of a peace building commission. Creation of a peace building commission. As we know, the main function of the UNO is to maintain and promote world peace and security, and for that purpose the UN must have a peace building commission whose main aim should be maintenance and promotion of world peace and security. So this step must be taken in order to make it relevant. Okay, and then the second step is acceptance of responsibility of the international community in case of failure of national government to protect their own citizens from atrocities. Many times it happens that that the government of any country fails to protect its own citizen from any kind of atrocity. Like there can be such situation, like the country is not able to protect the minorities of its country. There may be genocide against that minority within the country, and the government is not able to stop this atrocity, this genocide. Then in that situation, it is the responsibility of the international community to protect that minority community of that particular nation, because the government is not able to protect the minorities. So this should be taken as international responsibility by the international community. Okay, so this is another step. Okay, international responsibility of international community in case the national government fails to protect its citizens. Then in this meeting, this is the second step which was recommended. The third step was the establishment of a human rights council. Human rights council का मतलब क्या हुआ कि एक involved we know human rights violation होते रहते हैं different places पे, तो human rights violation को रोकने के लिए एक human rights council को बनाया जाए, इसका रिकमेंडेशन किया गया था और ये बन भी गया 2006 में ही। 19 जून 2006 को ये ह्यूमन राइट्स काउंसिल जो है उसका एस्टैब्लिशमेंट हो जाता है। इसका मेन फंक्शन यही है कि ह्यूमन राइट्स का वायलेशन को रोकना, किसी भी कंट्री में अगर ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है तो उसको रोकना। सो दिस इज द थर्ड recommendation to establish a human rights council.
Human Rights Council. And next is agreement to achieve the Millennium Development Goals. This is another one of the most important recommendation कि there should be some Millennium Development Goals. कि ये जो न्यू मिलेनियम स्टार्ट हुआ 2000 में, इस मिलेनियम में हमारे क्या डेवलपमेंट गोल्स होने चाहिए, एंड दीज डेवलपमेंट गोल्स आर मोस्टली रिलेटेड टू socio-economic issues, not these are not connected with the peace and security issues like environmental degradation को रोकने के लिए, then gender equality को maintain करना, then जो कुछ भी चीज़ें हैं जैसे माइनॉरिटीज़ हैं उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना. तो ये जितने भी इश्यूज इसमें आ रहे हैं मिलेनियम डेवलपमेंट प्रोग्राम में, वो जो है वो सारे जो है सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज से रिलेटेड हैं. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और उसको अग्रीमेंट उस पर हुआ भी, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल सेट किया गया और उसको अचीव करने का एफर्ट भी हो रहा है. और आज के समय में एक और चीज़ है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल. SDG भी UN ने अपना फिक्स कर लिया है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए हमें क्या गोल होना चाहिए. सस्टेनेबल डेवलपमेंट यू ऑल नो दैट कि इस तरह से डेवलपमेंट होना चाहिए जिससे कि न सिर्फ प्रेजेंट जनरेशन बल्कि फ्यूचर जनरेशन के लिए भी रिसोर्सेज को बचाया जा सके. तो दिस आर ऑल कनेक्टेड विथ मोस्टली विद द एनवायरमेंटल इश्यूज, देन इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज. तो जो उस मीटिंग में जो डिसाइड हुआ था दैट वाज अबाउट मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, जिसको हम MDGs भी कहते हैं. ठीक है, तो ये 3 रिफॉर्म्स के लिए ये 3 स्टेप्स बताए गए. चौथा जो है दैट इज अबाउट मिलेनियम डेवलपमेंट गोल. To achieve MDGs. Fourth is to achieve Millennium Development Goals, which are related to socio-economic and environmental issues. Okay, and now we see the next step or next suggestion to reform the jurisdiction of the UN. This is condemnation of terrorism in all its forms and manifestation. There should be condemnation. Never the terrorism should never be supported by the UN. It is very much important. If we want to curb terrorism, then it must be condemned. इसकी आलोचना की जानी चाहिए, क्रिटिसाइज किया जाना चाहिए. कभी भी किसी भी फॉर्म में इसको सपोर्ट नहीं मिलना चाहिए. ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, कंडेमनेशन ऑफ टेररिज्म. ठीक है, ये हमारा 5th है. दिस इज द 4th पॉइंट, है ना. 5th है कंडेमनेशन ऑफ टेररिज्म एंड देन क्रिएशन ऑफ डेमोक्रेसी फंड. डेमोक्रेसी के लिए एक फंड क्रिएट किया जाए, ये भी इसका एक सुझाव था, एक सजेशन था कि इसके जो जुरिस्डिक्शन है उसमें एक चीज़ ये भी करके एक नया चीज़ ये ऐड किया जाए कि डेमोक्रेसी फंड स्टैब्लिश किया जाए. और जो इनका लास्ट सजेशन है दैट इज अबाउट एन एग्रीमेंट टू वाइंड अप द ट्रस्टीशिप काउंसिल.
जो ट्रस्टीशिप काउंसिल है उसको वाइंड अप करना, बिकॉज ट्रस्टीशिप काउंसिल को वी हैव डिस्कस्ड अबाउट इट कि जो सिक्स्थ ऑर्गन है सिक्योरिटी इसका यूनाइटेड नेशन का, वो है ट्रस्टीशिप काउंसिल. एंड ट्रस्टीशिप काउंसिल हैज बिकम इररेलेवेंट टुडे because no country is colonized. Palau was the last country which got independence in the year 1984, and after that no country is there which is under colonial rule. So there is it should be winded up, okay, to wind up the trusteeship council. As we know कि 1994 में जब पलाव को आज़ादी मिल गई उसके बाद से इसकी ज़रूरत नहीं रह गई, तो इसको ख़त्म करने की बात है. तो दीज आर द recommendation to bring changes in the jurisdiction of the UN. But what we find that all these suggestions are highly contentious. It's not if we focus on any one of the suggestions, we find that it is not such issue or such suggestion which is without any contention. बहुत सारे conflicts और contentions हैं इसमें. सबसे पहले जो बात इनका कहना है, जो हमने फर्स्ट स्टेप देखा था, फर्स्ट जो रिकमेंडेशन था, दैट वाज अबाउट द क्रिएशन ऑफ अ पीस बिल्डिंग कमीशन. तो पीस बिल्डिंग कमीशन का क्या काम होगा, प्रिसाइज नहीं किया गया है. आपने ये तो कह दिया कि हाँ, इट द मेन फंक्शन, द मेन पर्पस ऑफ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द UN was to maintain and promote international peace and security, and that is why one peace building commission should be there. But what it should do, what should be its function, how it will be different from the functions of the security council, इस बारे में कुछ भी कहा नहीं जा सकता है. कुछ भी चीज़ें क्लियर नहीं है. बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हैं पूरी दुनिया में, विद डिफरेंट कंट्रीज के बीच में सो मेनी कॉन्फ्लिक्ट्स आर देयर. तो किस कॉन्फ्लिक्ट में इसको इंटरफेयर करना है और किस में नहीं इंटरफेयर करना है, इस बारे में कुछ भी प्रिसाइजली नहीं कहा गया है. ये भी अगर जैसे हमने वहाँ पहले वाले सेक्शन में देखा था, जो क्राइटेरिया फिक्स किया गया था, जैसे वो एक जनरलाइज्ड क्राइटेरिया था, उसी तरह से ये रिकमेंडेशंस भी प्रिसाइजली कुछ भी नहीं कहते हैं. पूरी दुनिया में इतने सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हैं डिफरेंट कंट्रीज के बीच, न तो ये पॉसिबल हो पाएगा प्रैक्टिकली कि सारे कॉन्फ्लिक्ट्स में को जो है ये पीस बिल्डिंग कमीशन उसमें इंटरफेयर करे, और एक तो ये प्रैक्टिकली भी पॉसिबल नहीं होगा और नहीं डिज़ायरेबल होगा. कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि बायलैटरल लेवल पे ही ज़्यादा बढ़िया से जिसको सॉल्व किया जा सकता है. अगर कोई थर्ड पार्टी के आने से कभी कभी चीज़ें उलझ भी जाती हैं, तो हम इसको सही नहीं मान सकते हैं. ये जो पीस बिल्डिंग कमीशन की बात है, इसको लेकर क्लैरिटी नहीं है कि किन कॉन्फ्लिक्ट्स में वो कहाँ पर इंटरफेयर करेगा, कितना इंटरफेयर करेगा, इस बारे में कोई भी प्रिसाइज बात नहीं की गई है ना. अब दूसरी वाली जो हमने देखा था, जो सजेशन था, दैट वाज अबाउट कि जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है, दैट शुड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर प्रोटेक्शन ऑफ एनी community in a country if the government of that country is not able to protect them, है ना. तो ये तो बहुत ज़्यादा जिसको हम कहेंगे कंट्रोवर्शियल है. किस बेसिस पे कोई कम्युनिटी जो है, इंटरनेशनल कम्युनिटी इंटरफेयर करेगी, किस लेवल ऑफ एट्रोसिटी को आप ये मानेंगे कि हाँ, इस लेवल पे अब इंटरफेयर कर देना चाहिए, इस लेवल के नीचे है तो ये उनका इंटरनल मैटर है, दे विल सॉल्व दैट मैटर. इस लेवल के ऊपर हो गया तो इंटरनेशनल इंटरफेरेंस, इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो इंटरफेयर करेगी. ये नहीं इस बारे में डिसाइड नहीं किया जा सकता. और ये ऐसे इश्यूज हैं जिसका कि बिल्कुल ही मिसयूज होगा और कुछ भी नहीं होगा. जो भी कंट्री जिसको हम कहेंगे कि अगर जो पावरफुल कंट्रीज हैं उनके हिसाब से चलने वाले जो कंट्री होंगे, वहाँ पर कभी भी इंटरफेरेंस नहीं होगा. लेकिन जो कंट्री पावरफुल कंट्री के हिसाब से नहीं चल रहे होंगे, वहाँ पर
या फिर उनको किसी भी तरह से प्रेशराइज करने के लिए इसका मिसयूज़ आराम से हो सकता है। तो ये चीज़ें, ये जो रिकमेंडेशन है इसको बिल्कुल भी सही नहीं कहा जा सकता है। तो ह्यूमन राइट्स के बेसिस पे जो इंटरवेंशन की बात की गई है कि कहीं पर एट्रोसिटी से बचाने के लिए, उसको हम सही नहीं मानेंगे, क्योंकि एट्रोसिटी के लेवल को आप फिक्स नहीं कर सकते हैं कि किस कंडीशन में कितने लेवल पे इंटरफेयर होना चाहिए। इसी तरह से अगर आगे हम बढ़ते हैं तो जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल रखा है यूएन ने, जो कि सोशियो इकोनॉमिक और एनवायरमेंटल इश्यूज से रिलेटेड है, और एज आई टोल्ड यू these millennium development goals, these have changed to sustainable development goals। तो sustainable development goals, इसी को ये जो है ये अब कैसे से बदल गया है, it has changed into SDG। अब ये जो SDG की अगर हम बात करें तो sustainable development is very required, it is very much desirable, but still the countries which are still developing, जो अभी भी डेवलपिंग है, लाइक जो एशिया और लैटिन अमेरिका, अफ्रीका के कंट्रीज़ जो कि कॉलोनियल रूल के कंट्रोल में थे और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद वो आज़ाद हुए, एंड इन दीज कंट्रीज the process of industrialization started only after the second century, only after the Second World War, that is in the 20th century, after the mid half, we can say after the mid half of the 20th century, the process of industrial development started in these countries. So what we find that we cannot equate the level of development, we are still developing, but the countries of America, countries of Europe, they are developed and they have contributed much more in polluting the world than the countries of the developing countries। तो हर के लिए आप एक जैसा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स नहीं फिक्स कर सकते, इट इज़ नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल, इट इज़ नॉट रियलिस्टिक। UN will not be able to achieve an ambitious set of goals, है ना, जो बहुत एम्बिशियस है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में जो भी गोल्स रखे गए हैं, दे आर हाईली एम्बिशियस, और डेवलपिंग कंट्री उसको अचीव करने के लिए अगर काम करेंगे तो फिर उनका इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑब्स्ट्रक्ट होगा। तो इसलिए इसकी ये प्रॉब्लम है ना। फिर जो नेक्स्ट बात ये कर रहे हैं कि कंडेमनेशन ऑफ टेररिज्म, ये भी इट इज़ ऑल्सो अ कंटेंशियस इशू। हम टेररिज्म को अगर डिफ़ाइन करना चाहें तो बहुत मुश्किल है टेररिज्म को डिफ़ाइन करना, क्योंकि एक नज़रिए से जिसको हम या फिर हम कहें एक ग्रुप ऑफ पीपल जिसको टेररिज्म कहता है, उसी को दूसरा ग्रुप ऑफ पीपल आज़ादी की लड़ाई कहता है ना। तो ये तो इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। आप ऐसे हर किसी को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं कह सकते। जैसे अगर अभी का सिचुएशन हम देखें, इजराइल ने अटैक किया गाज़ा पट्टी, है ना, गाज़ा स्ट्रिप पे अटैक हुआ। हमास को इजराइल ने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बताता है, जबकि हमास को अगर देखा जाए तो इट इज़ नॉट, इट कैन नॉट बी सेड टू बी अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। तो डेफिनेशंस तो चेंज हो जाते हैं ना, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू कॉन्टेक्स्ट। आप सबको एक समान एक ही तरीके से आप नहीं काउंट कर सकते हैं कि हर कोई बस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के क्या क्राइटेरिया, उसके बेसिस पे आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं कह सकते। एज आई टोल्ड यू, for some it may be a terrorist organization, but for some it may be an organization which is leading their national movement। ओके तो ये भी बहुत ही मुश्किल है टेररिज्म को डिफाइन करना और उसके अकॉर्डिंगली एक्ट करना। और दूसरी चीज़ जो है क्रिएशन ऑफ डेमोक्रेसी फंड, ये तो फंड तो बन जाएगा, ठीक है, बट नाउ द क्वेश्चन इज हाउ द UN विल यूज दिस फंड टू प्रमोट डेमोक्रेसी। व्हाट इज द कनेक्शन बिटवीन फंड एंड डेमोक्रेसी? दिस मेक्स these suggestions controversial। आप डेमोक्रेसी के लिए फंड बनाने की बात कर रहे हैं, जबकि डेमोक्रेसी के लिए फंड की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। तो इस तरह से अगर हम ये सारे जो सजेशंस दिए गए हैं UN के जुरिस्डिक्शन में रिफॉर्म के लिए, ये अपने आप में बहुत ही कंट्रोवर्शियल है, कॉन्टेंशियस है।
So these are the suggestions, but these all are full of limitations. And now we see that on page number 92 you will see that one world map is given, and in this world map you will see some dots are there, and which these dots are indicating the United Nations peacekeeping operations. Okay, United Nations peacekeeping operation. It means कि the places where conflicts or war occurred, and in that situation of war, UN has started peacekeeping operation to bring peace. That operation was done by UN. ठीक है, जिसमें कि जॉइंट फोर्स जो होती है डिफरेंट कंट्रीज की वो वहाँ पर जाती है. तो इफ़ यू लुक केयरफुली दिस मैप, what you will find that the most of the peacekeeping operations are concentrated in Africa. Then in Middle East. अफ्रीका में पूरे का पूरा कंसंट्रेटेड है, फिर मिडिल ईस्ट में है ना. यूरोप में एक जगह पे हमें दिखता है यूएन का मिलिट्री ऑपरेशन हुआ था, दैट वाज इन कोसोवो. ठीक है. और इसके अलावा साउथ एशिया में जो इंडो पाकिस्तान जो वॉर हुआ था 1947 में, उस समय जो आया था. ठीक है. इसके अलावा हम इसमें जो हमें एनालाइज करना है वो ये है कि वाई द पीस कीपिंग ऑपरेशन ऑफ UN is more in Africa than any other country. It is more in Middle East than any other country. The reason is Africa is the poorest continent, है ना? And because of being poor, the powerful countries start interfering in the matters of the countries of this continent, क्योंकि वो पुअर कॉन्टिनेंट. बस दिस इज द रीज़न कि हमें दिखता है कि सबसे ज़्यादा जो डॉट्स हमें नज़र आ रहे हैं वो इसी में यहीं पर नज़र आ रहा है. अफ्रीका में माली में हुआ, वेस्टर्न सहारा में हुआ, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक में हुआ, डार्फुर में हुआ. देन अगर नीचे हम लोग देखें तो फिर लाइबेरिया में हुआ, देन रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, साउथ सूडान. Okay, Abai, these are the countries of Africa. तो ये है पावरफुल कंट्रीज का जिसको कहते हैं हम गेम पॉलिटिक्स. जो गरीब है उसी को एक्सप्लॉइट किया जाता है. जो गरीब कॉन्टिनेंट है उसको जो पावरफुल कंट्रीज है दे आर इंटरफेयरिंग इन देयर मैटर्स, है ना. इसी तरह से मिडिल ईस्ट को भी देखिए तो मिडिल ईस्ट में भी हमें ढेर सारे डॉट्स दिखते हैं. क्यों? क्योंकि मिडिल ईस्ट में जो हम जानते हैं नेचुरल गैस एंड ऑयल के वहाँ पे ट्रेजर है. एंड ऑल द पावरफुल कंट्रीज, जब तक कोल्ड वॉर चला तब तक दोनों सुपर पावर, और आज भी जो पावरफुल कंट्रीज हैं खासकर अमेरिका यही चाहता है कि इन कंट्रीज पे उसका कमांड रहे, होल्ड रहे, ताकि वहाँ के रिसोर्सेज को यूज़ कर सके. तो इन मिडिल ईस्ट के कंट्रीज में सबसे ज़्यादा हमें दिखता है सीरिया है, देन और भी बहुत सारे कंट्रीज हैं, लेबनान है ना. इन सब कंट्रीज़ में यहाँ पर इंटरफेरेंस होता रहा. इराक है. ठीक है. तो ये जो है यही है वर्ल्ड पॉलिटिक्स का. एकदम आपको साफ सुथरा समझ में आ जाएगा कि इट्स नॉट अबाउट पीस कीपिंग ऑपरेशन, इट्स अबाउट डोमिनेटिंग द
weaker one and nothing else. This is world politics. Okay, so we have completed up to this, and now in the next class we will discuss India and UN. What is the how India is connected with the demand of reforms in the UN.